أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كيف حالكم؟ الحمدللہ. الحمد للہ علی کل حال. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا جی، آج ہے آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سورہ البقرہ کی ہم نے آیت نمبر 54 کرنی ہے. ہمارا صفحہ نمبر 7 ہے، اشارہ سی ہے، یعنی ہمارا ایک اور پیج الحمدللہ کمپلیٹ ہونے کو ہے انشاءاللہ. کل ہمارا 7واں صفحہ بھی پورا ہو جائے گا. اچھا جی، ہم نے شروع کیا تھا سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ میں ہم نے 12 اچھی عادات سیکھی تھی. پھر ہم آئے سورہ البقرہ پہ، تو یہاں پر ہم نے سیکھا کہ متقین کی صفات کون سی ہیں، اور جن لوگوں نے شک کیا ان کے لیے جنت کا یا ان کے لیے توبہ کا، ہدایت کا کوئی حصہ نہیں. پھر قرآن کی دعوت، چیلنج، بہت سی مثالیں. اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 5 پر آئے حضرت آدم علیہ السلام کا. اس میں قصہ تھا جس میں بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں ہدایت عطا فرمائی گئی. اس کے بعد جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، اور یہ چلے گا QC5 کے شروع کے کچھ اسباق تک. اس کے بعد ہم پھر پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. تو ہم اپنا صفحہ نمبر 6 اور 6 مکمل کر چکے ہیں. 7 میں کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے چھٹے صفحے کے اشارے کیا تھے. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن. ٹھیک ہو گیا جی. اور اب یہ جو ہمارے 7ویں صفحے کے اشارے ہیں، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. فرعون، 40 بچڑا، دکھاؤ. آج ہم کریں گے بچڑا اور توبہ. یہ ہمارے مختصر اشارے بھی دیکھ لیجئے. فرعون، 40 راتیں، بچڑے کی عبادت اور اللہ کو دکھاؤ والے مطالبے کو یاد رکھتے ہوئے اس پیج کے اشارے یاد رکھیے گا. ہمارا اشارہ ہے بچڑا اور توبہ. پچھلی آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مسلسل اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے. کیسے وہ ہم نے پڑھا تھا، اذکرونی. ٹھیک ہو گیا جی، یاد کرو مجھے، میری نعمتوں کو. ہم ایسا کرتے ہیں یہاں پر اسباق دیکھ کے تو تلاوت کر لیں گے. اچھا جی، بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ توبہ کرو. اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا انہیں قتل کر دیا جائے. شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا. ہم نے کیا پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ تواب ہے. انسان بھی تواب ہے، اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے. وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور نرمی کرنے والا ہے. اچھا جی، آج کے اس لیسن میں ہمارے پاس صرف 3 نئے الفاظ ہیں. جو باری، یہ ایک نیا ہی ہے. اجل کو ہم ویسے پڑھ چکے ہیں. اقتلو انفسکم، اگر دیکھا جائے تو ملا جلا کے صرف باری، یہ ایک نیا لفظ ہے. لیکن باری ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ویسے جانتے تو ہیں، اگر ہمیں معنی نہیں بھی اس کا اس انداز میں پتا تو جی، ہمارے لیے لفظ باری نیا تعالیٰ نہیں کہتے ہیں اکثر. ہے. باری بالکل تعالیٰ. بالکل بالکل. یعنی کہ عربی کو ہم اس طرح سے اردو کی وجہ سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمیں سمجھ آ رہی ہو یا نہ. جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اس میں استعمال بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور آج کل جو ہم اپنے ٹیبل کر رہے ہیں مزید پی کے، اس کے آپ دیکھیے گا زیادہ تر جو مصادر بن رہے ہیں، جو مصدر ہے، وہ ہم اردو میں اسی طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ استعمال بھی ایک مصدر ہی بنے گا. یہاں پر ہم کریں گے تلاوت، اس پیج سے کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. अच्छा जी, यहाँ पर है और इस काला मूसा लिकौमिही, और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम, बेशक तुमने जुल्म किया अपने आप पर माबूद बनाकर बछड़े को, लिहाजा तुम रुजू करो अपने पैदा करने वाले की तरफ और तुम कत्ल करो अपने आप को। पहले हम सिर्फ इतना हिस्सा देखेंगे आयत मुबारक का। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखें वा इस कौला मूसा, यहाँ पर ये तमाम अल्फाज हमारे जाने पहचाने हैं। वा और इज हम जानते हैं इज और इजा का जो फर्क था कि इज आ जाए तो ज्यादातर ये होता है कि ये जो माना होता है उसको अगर मुस्तकबिल वाला आपके पास यूज हुआ हुआ फेल तो उसको माजी में ले जाता है, और हमने देखा था इजा जा में हमने जो फेल यूज किया था वो माजी का था, और जो तर्जुमा था वो वहां पर हमारा प्रेजेंट वाला या फ्यूचर वाला हो रहा था। कौला कौला हम अब QC2 में पढ़ के आए हैं। मूसा हमें पता है हजरत मूसा ली कौमी ही, तीन आपने ये जो हर्फ ली को अलग करना है, कौम को अलग करना है और ही को अलग करना है। ठीक हो गया जी। जैसे ली हम लिए वाला तर्जुमा करते हैं, लेकिन ये कि उर्दू में जब हम पूरा रवानी में तर्जुमा करते हैं तो उसका थोड़ा सा से या केस इससे बदल देते हैं। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, अपनी कौम के लिए नहीं कहेंगे, अपनी कौम से, या कौमी, अब या कौमी में ये जो मीम के नीचे जेर है ये बता रही है कि यहाँ पर ये उसी तरह से जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं दीनी। ठीक हो गया जी। ये यहाँ पर है, अगर हम इसको खोल के लिख लें तो ये है या कौम और ये जो अपनी तरफ वाला या यूज करते हैं, ये वाला ये कुरान पाक का उस्लूब है कि या को हजफ कर दिया जाता है और यूं इस तरह से जो हमारा आखिरी हर्फ है उसको जेर दे दी जाती है। तो यहाँ पर एक या अंडरस्टूड है, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम, अच्छा जी, ये है इन्नकुम, इन्नकुम के हम दो टुकड़े कर लेंगे, बेशक तुम सब, ज़लम तुम, अच्छा जी, ये जो है ज़ालमा ज़लमु ज़लम, ज़लम ता ज़लम तू ज़लम तुम, ये वो वाला बेशक तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम अपने आप पर, बी से यानी कि किस वजह से कैसे जुल्म किया था, इत्तिखाज, इत्तिखाज हमने क्या पढ़ा है, इत्तिखाज मस्दर है, जैसे हमने पढ़ा था इख्तिलाफ, ये वही है बित्तिखाज। अब ये जो बी के साथ मिलाया तो इसका ये जो हमजातुल वस्ल था इसको गिरा दिया और बाकी जेर को हमने डायरेक्ट ताकि शद से यानी कि ताकि जेर से मिला के बित्तिखाज कर दिया। बी इत्तिखाजी कुम, अगर टुकड़े बनाना चाहें तो टुकड़े हम तीन बनाएंगे, बी इत्तिखाज और कुम, माबूद बनाकर बछड़े को, इजल कहते हैं ना बछड़े को, ये हमने पीछे भी पढ़ा। इसकी जमा शायद आपकी बुक में है या नहीं, इसकी बनेगी जैसे हम बनाते हैं कल्ब से कुलूब, ये बन जाएगी इजल से उजूल, या हम इसकी दूसरी तरह की जमा बना सकते हैं जैसे होता है इफ अफआल, तो अजाल अमाल की तरह लिख के, ताकि आप पे कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे हम लिखते हैं अमाल, अमल की जमा लिखते हैं ना अमाल, इसी तरह से हम लिख लेंगे आजाल, और जैसे हम लिखते हैं कुलूब इसी तरह से लिख लेंगे उजूल। ठीक हो गया जी। और ये कौन सी जमा ये भी बता दीजिए, इस जमा को हम क्या कहते हैं, जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर, क्योंकि इसमें पूरा पूरा जैसे अब ये कल्ब था तो ये पूरा कल्ब कुलूब में मौजूद नहीं है, इसी तरह से आमाल में अमल पूरा का पूरा मौजूद नहीं, इसी तरह से
इजल से जब हमने अजाल या उजूल किया तो वो फर्क पड़ गया अल्फाज का। ये वाली चीजें हमने साथ साथ याद रखनी है ताकि ये हमें भूले ना, क्योंकि ये हमारे साथ इसी तरह से आगे जैसे जैसे हमने बढ़ते जाना है, ये याद होंगी तो हम इनको जल्दी जल्दी अप्लाई करना सीख लेंगे। ठीक हो गया जी। भी इत्तिखाज़िकुम इजला यहाँ तक हम देख चुके। इसके बाद है फतूबू, बस तुम सब रुजू करो, इला तरफ बारी, बारी को देखते हैं, फा जो हम कहते हैं तो बस वगैरह, यहाँ पर लिहाजा का तर्जुमा है, पस का तर्जुमा किया जाता है, तो का किया जाता है। और आप देखिए यहाँ अगली ही जो ये जो सेंटेंस अगला हमें फ्रेज नजर आया, इस पे और वाला तर्जुमा किया, लिहाजा तुम रुजू करो यानी कि तुम तौबा करो। ये हमने ताबा का भी पूरा टेबल किया हुआ है ना, ये वही फतूबू ये वही है, लिहाजा तौबा करो, तुम रुजू करो, इला तरफ, किसकी तरफ, बारी कुम, बारी और कुम, बारी कहते हैं पैदा करने वाले को। पैदा करने वाला कैसा पैदा करने वाला, जो बगैर किसी स्ट्रक्चर बगैर किसी नक्शे से अदम से पैदा करे। यानी कि अल्लाह ताला को ये जरूरत ही नहीं है कि उसको पहले किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़े, वो जैसे चाहे तख्लीक कर सकता है। इसे कहते हैं बारी, यानी कि अदम से वजूद में लाना। इसके बाद लिखा हुआ है फक्तुलू, और कत्ल करो, अनफुसकुम, अपने आप को। यानी कि जो आप लोगों में से जिन लोगों ने शिर्क किया उनको कत्ल कर दिया जाए, ये सजा सुनाई गई थी कि यानी शिर्क किसी तरह भी माफ नहीं है। इसके बावजूद अगली ही आयत मुबारका में, इसी आयत के अगले टुकड़े में बताया कि तौबा करो, और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल भी कर लिया था। अनफुसा को देखें, अनफुसा और कुम, यहाँ पर भी हम दो टुकड़े बना लेंगे, फा कुतुलू, यहाँ भी हम दो टुकड़े बनाएंगे, बारी कुम, बारी और कुम, हम यहाँ पर इसके दो टुकड़े बनाएंगे। और अगर आपको दे दिया जाए फक्तुलू अनफुसकुम, तो आप फा को अलग कीजिए, उक्तुलू को अलग कीजिए, अनफुसा को अलग कर लीजिए और कुम को अलग कीजिए। इस तरह से इस फ्रेज में से आपके 4 टुकड़े बन जाएंगे। या कौमी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र और नरम दिली का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जब आप अलैहिस्सलाम चले गए थे 40 रातों के लिए कोहे तूर पर अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक वादा पूरा करने के लिए, तो पीछे से इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। अब ये शिर्क जैसा बड़ा गुनाह था कि जिसे अल्लाह ताला ने माफ ना करने का बताया है। इसके बावजूद आप कितनी अपनी कौम को नरमी से आवाज दे रहे कि ए मेरी कौम, मोहब्बत से, अपनाइयत से। और ये किसके लिए सबक है, ये एक दाई के लिए, यानी कि इस्लाम की तरफ तबलीग करने वाले को, बुलाने वाले को, या एक टीचर के लिए पैगाम है कि किस तरह का रवैया होना चाहिए। यानी कि गलतियों को बार बार माफ करना सीखें। अच्छा जी, मेरा भी ये किया करें, अगर मैं कहीं आपके साथ कोई सख्त रवैया रखूं तो मुझे याद दिलाया करें रिमाइंडर के तौर पर, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि देखिएगा कि ये जो सारी चीजें हमें दिखाई गई हैं, कुरान मजीद में बताई गई हैं, ये हमारे लिए हर तरह से पैगाम ही पैगाम है। तो हर दाई के लिए सबक है कि लोगों के साथ रवैया कैसा हो, यानी कि इस्लाम को हाथ से फैलाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपका अमल ऐसा हो कि लोग खुद ब खुद आपको फॉलो करें। यानी कि मुसलमान को ये कहना ना पड़े कि मैं मुसलमान हूँ, कह के बताना ना पड़े, अपनी जुबान इस्तेमाल ना करनी पड़े, या अपने हाथों से ना रोकना पड़े इस तरह की चीजों को कि कोई आपको अगर आपके ड्रेस, जिस तरह से आप ड्रेसअप में उस वजह से देख के कुछ का कुछ बना दे। तो अपने आप को इस तरह से रखना है कि आपका इखलाक भी बेहतरीन हो, और आपका लिबास और आपका चलना फिरना उठना बैठना इस्लाम के ऐन मुताबिक हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें जिंदगी के तमाम मामलात में मुकम्मल रहनुमाई मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया और तुमने जानवर की परस्तिश की जो कोई इख्तियार नहीं रखता। और फिर ये देखिए, वो जानवर भी नहीं था, वो जानवर का पुतला था। जानवर में तो फिर भी जान होती है, वो चलता फिरता है, खाता है, उसके साथ तमाम मामलात होते हैं, लेकिन ये क्या था, ये सिर्फ एक जानवर का पुतला बना दिया था। वाकई ये बहुत बड़ा जुल्म है जो तुम लोगों ने अपने आप पर किया। फतूबू, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शिर्क करने वाले गुनाहगारों को उनके हाल पर नहीं छोड़ दिया कि चलो उन्होंने जो किया किया, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, बल्कि आपने कोशिश की कि वो तौबा करें, यानी कि उनको इस बात की तरफ भी राग़िब किया, उनको इस तरफ तवज्जो दिलाई
کہ وہ توبہ کریں اور انہیں اللہ سے معافی کا پروانہ مل جائے. اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس پر بجائے اس کے کہ دلیل لیں اور ثبوت لائیں، بلکہ بہترین طریقہ کیا ہے کہ توبہ کر لی جائے. اور توبہ کیسی توبہ کہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا عہد کیا جائے. باریکم، اللہ تعالیٰ الباری ہے، یعنی ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، اسے اپنی حکمت، پلان اور ڈیزائن کے مطابق تیار کرتا ہے. اب جب انہوں نے یہ بچڑا بنایا تھا تو یہ اس طرح سے نہیں بنا لیا تھا کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی عجیب سی کوئی شکل بنائی ہو، بلکہ ان لوگوں نے بھی کیا کیا تھا، ان لوگوں نے بچڑے کو دیکھا ہی ہوتا ہے سب نے بچڑے کو، تو اسی کو پورا اسی طرح سے ڈیزائن کیا تھا. اس گناہ کی توبہ کے طور پر انہیں حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے جن لوگوں نے کھلے معجزات اور اللہ کے انعامات کو دیکھنے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے جو بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں کے بعد بھی شرک کیا، یعنی کہ یہ اپنے آپ میں ظلم تھا. اچھا جی، اب ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ پھر اس کے ورڈ ٹو ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم بے شک تم سب نے ظلم کیا اپنے آپ پر، بی اتخاذکم العجلہ، بچڑے کو معبود بنا کر. اچھا جی، فتوبو، پس توبہ کرو. توبو یہ کون سا والا یہاں پر سیگا یوز ہوا ہے؟ امر جمع. امر جمع. امر جمع. سمپل سی پہچان جو ہوتی ہے امر نا، جمع. ہاں جی، اس کو آپ یہ والا جو ماضی والا نہ بنائیں، اس پیش کے واو آپ والے. ترجمے سے بھی مدد لیا کریں. یہ ترجمے میں تم والا آ رہا نا، لہٰذا تم رجوع کرو، تو تم رجوع کرو یہ والا امر والا ہو جاتا، تم رجوع کرو الی باریکم فقتلوا، یہ بھی اسی طرح سے فعل امر یوز ہو گیا، تم قتل کرو اپنے آپ کو. یہ والی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، جو ہم الفاظ کو دیکھ کے سمجھ جائیں، سیگے پہ پہنچ جائیں، ہم اس کے ٹیبل پر پہنچ جائیں، یہ والی ہی انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہمیں اپنے کسی کورسز کے لیے بھی اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی، تاکہ ہم الفاظ کو مکمل طور پہ سمجھ سکیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو تابا والا ٹیبل ہے، اس میں آپ بتائیے گا اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ تا باؤ با. الحمدللہ. اور یہ فتوبو، یہ کس طرف اشارہ ہو رہا، کون سا باب ہو سکتا ہے؟ تابا یتوبو تو ناصرہ. ناصرہ پہ. الحمدللہ الحمدللہ. یہ پیش بتا دیتی ہے نا، جیسے فَقُتُلُوا، ٹھیک ہو گیا جی. ان کو جوڑ توڑ کر کے بھی دیکھا کریں، پھر آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں کافی دیر ہو جاتی ہے. اچھا جی، ذالکم خیر لکم عند باریئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں دوسری مرتبہ یہ پیدا کرنے والی یعنی کہ عدم سے وجود میں لانے والے رب کی بات کی گئی. فتاب علیکم، پس اس نے توبہ قبول کی. تو اس نے توبہ قبول کی، پھر اس نے توبہ قبول کی، ہر طرح سے ترجمہ ٹھیک ہے. علیکم تمہاری، اب تم سب پر نہیں لکھا بلکہ لکھا ہے کہ سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری. انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا. ذالکم، ہم نے دیکھا تھا کہ ذالکا اور ذالکم یہ اسی طرح سے ہوگا. ذالکم یہ جب اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہو جاتا ہے کہ جب ایک کو بتا رہے ہوں جو دور ہو تو ذالکا کر لیا جاتا ہے، اور اگر زیادہ لوگوں کو بتا رہے ہوں، جو زیادہ لوگ آپ کے پاس کھڑے ان کو دور کی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر ذالکم یوز کر لیا جاتا. الاؤڈ ہے، ضروری نہیں ہے. خیر، خیر ہم دیکھ چکے ہیں کافی مرتبہ، بہتر ہے، احسن ہے، بہترین ہے، لکم تم سب کے لیے. اندہ کو ہم سمجھ رہے ہیں QC1 سے، یعنی کہ یہ اسم ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا، اور اس کا معنی پاس بھی ہو سکتا ہے، نزدیک بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے. باریکم اسی طرح سے ہم اندا کا مطلب اندا، سوری اندا اسم ہے. اندا اسم ہے، یہ ہم نے کہاں سیکھا تھا، یاد ہوگا کسی کو؟ اچھا ون، QC1 QC1 میں. QC1 میں ایک تو اندا تھا، ایک ٹھیک ہے. اور بھی تھا نزدیک. مع. ٹھیک ہو گیا. یہ دونوں اسماء ہیں، یہ ہم نے بہت بار ریپیٹ کی تھی بات کہ آپ نے ان کو حرف نہیں کہنا.
अच्छा जी, यहाँ पर है फताबा अलैकुम फतूबू इला। अच्छा जी, अब आपने कैसे याद रखना है ताबा अला और ताबा इला को, अलई। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? इसका मतलब है तौबा को कबूल किया गया, और ये है तौबा करना। ताबा अला किसके लिए यूज करेंगे? अल्लाह ताला के लिए। और हम जो तौबा करने वाले हैं उनके लिए है इला, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ हम तौबा करते हैं, तौबा करने वाले के लिए। अच्छा, जिसकी जो निशानी हम रखेंगे वो हम रख लेंगे इला और अला का फर्क। अला का मतलब क्या होता है? अल्लाह का ऊपर, मतलब पर। पर ऊपर या पर। पर। हम ऊपर को यहाँ कर लेते हैं। अल्लाह ताला, हम ऊपर ही इस तरह से इशारा करते हैं। जब हम अल्लाह ताला का से दुआ भी करते हैं हम कहते हैं अल्लाह ताला ऊपर। तो हम याद रखेंगे कि किताबा आला हो तो ये अल्लाह ताला के लिए कि अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली। ये छोटे छोटे से ये टिप्स हैं, हिंट्स हैं, आप इनको ये ना समझिए कि ये ग्रामर के रूल्स हैं, ग्रामर का हिस्सा, ये याद रखने के लिए। किताबा आला से हमें याद रहेगा अल्लाह ताला ऊपर है, अल्लाह का माना ऊपर होता है, तो हम अल्लाह ताला के लिए यूज करेंगे फताबा अलैकुम। और जब बंदे तौबा करते हैं तो अब ये पिछली आयत मुबारका में भी देखिएगा, ये जो पिछली हमारी आयत का टुकड़ा ही है, आयत तो यही चल रही है। ये यहाँ पर फतूबू इला, ठीक हो गया जी। अब ये किसने? तुम रुजू करो इला बारीकुम, अपने पैदा करने वाले की तरफ, ठीक है। ताबा इला और ताबा अला में हमने अब इस तरह से फर्क कर लेना है, ठीक हो गया जी। इसको रेज करते हैं। इसके बाद है तवाब, हम जान चुके हैं। बारीकुम, एक ही लफ्ज को दो बार जिक्र किया गया। बनी इसराइल को समझ लेना चाहिए था कि वो बछड़ा तो अल्लाह की बेशुमार मखलूकात में से एक छोटी सी मखलूक है, और जब अल्लाह अलबारी है तो फिर उन्होंने एक बछड़े की इबादत कैसे की। अच्छा, यहाँ पर हम टुकड़े देख लेते हैं। जालिकुम के आपने टुकड़े नहीं करने, लकुम के दो टुकड़े करेंगे, बारीकुम के आप दो टुकड़े करेंगे, फताबा के दो टुकड़े, अलैकुम के दो टुकड़े, इन्नाहु के भी हम दो टुकड़े कर लेंगे। इसके बाद है हुआ। हुआ सिर्फ ये पूरा एक इस्म ज़मीर है, इसका हमें पता है। अत्तवाब और अर्रहीम, ये दो अल्लाह ताला की दो सिफात हैं। जहां पर आपको आवाज वगैरह आना बंद हो मुझे बताइएगा। नेट हमारा, अच्छा जी, अल्लाह ताला मैम एक बात पूछूं? जी। मैम ये जालिकुम खैरुल लकुम, जालिकुम का मतलब ये बेहतर, ये तुम सब के लिए, तो खैरुल लकुम का भी मतलब यही बनता है कि बेहतर है तुम सब के लिए, तो दो दफा आ जाता है ये। ये एम्फेसिस के लिए, ताकीद के लिए ये बेहतर है, अच्छा जी। जैसे ये बेहतर। अब देखें तर्जुमा भी वो वाला नहीं किया, जालिका का हमने तर्जुमा वैसे क्या किया हुआ है, जालिका जालिका ये वो वो का वो। वो हमने कहा था वो ज्यादा, जब सामने वो ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करना हो तो वो जो सारी चीजें हैं, ठीक है। अब जालिका एक बंदे को बताने के लिए, और जालिकुम ज्यादा लोगों को बताया था ना, पूरी कौम थी, ज्यादा हजरत लोगों को, हाँ जी। जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम थी, तो उन सबको ये तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या बेहतर है? कि तौबा कर ली जाए, ठीक हो गया जी। अल्लाह ठीक ताला है, शिर्क जज़ाक। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करता, और शिर्क की सजा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग है। यहाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया, इनके अल्लाह की बयान की हुई सजा पर अमल की वजह से। यानी कि जो सजा थी कि जो जिन्होंने शिर्क किया उनको कत्ल कर दिया जाए।
अत्तवाब अर्रहीम। जब भी हम अल्लाह ताला की इस किस्म की सिफात को सुने तो हमें फौरन अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़िरत और रहमो करम की दुआएं करनी चाहिए। मसलन, ए अल्लाह, आपने बनी इसराइल को शिर्क जैसे बड़े गुनाह करने के बावजूद माफ कर दिया, बस मुझे भी मुआफ कर दीजिए। और जहां पर आप देखेंगे, जब हम तौबा वाली बात करें तो हम कहें कि या अल्लाह, आप तव्वाब हैं, आप मेरी तौबा को कबूल फरमाएं। या अल्लाह, आप रहीम हैं, आप मुझ पर रहम फरमाएं। दुआओं में साथ साथ इस तरह से अल्लाह ताला की सिफात का भी जिक्र किया करेंगे, और हम इंशाल्लाह इसको इसी तरह से आदत बनाएंगे। अब हम ले लेते हैं एक हदीस। अच्छा जी, हदीस आप लोग अगर आपके पास बुक्स है तो बुक्स निकाल लीजिए, हम उसको जो अरबिक है ना उसको भी साथ साथ ही देख लेते हैं। अच्छा जी, हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो पर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह कहता है, क़ाल अल्लाहु, अल्लाह कहता है, या इब्ने आदम, यानी कि ए आदम के बेटे, इन्ना का बेशक तू, लौ, अगरचे इस हाल में कि अगर, इन्ना का लौ, अगर, आतई तनी, यानी कि मेरे पास आए, भी कुराबिल अर्द, जमीन के बराबर, खता, या तूने खता की हुई हो। ठीक हो गया, जिसका रवा तर्जुमा भी देखते हैं, पहले आप इसको लफ्जी देख लीजिए। सुम्मा, तो फिर, लाकई तनी, मुलाकात करे मुझसे, मिले इस हाल में, ला तुशरिक बी शैअन, के तूने शिर्क ना किया हुआ हो, यानी कि इसी तरह का भी शिर्क ना किया हो, तो ला आतई तू का, तो मैं बख्श दूंगा या मैं ले आऊंगा तेरे पास क्या चीज, यानी कि उसके बराबर, जमीन के बराबर, जो अभी पीछे जिक्र हुआ ना जमीन का भी, कुराबिल अर्द, उसके बराबर मग़फ़िरत लेकर आऊंगा और तुझे बख्श दूंगा। अब इसको रवानी में भी देख लीजिए कि अल्लाह ताला कहता है, ए आदम के बेटे, अगर तू जमीन बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मग़फ़िरत तलब करने के लिए मिले, इस हाल में कि मेरे साथ किसी तरह का शिर्क ना किया हो, तो मैं तेरे पास इसके बराबर मग़फ़िरत को लेकर आऊंगा और तुझे बख्श दूंगा। अच्छा जी, इसमें ये जो है ना, आतई अता वाला टेबल देखिएगा, लाक़ैतनी ये हमने टेबल किया हुआ, लाक़िया का टेबल, इस तरह से। कुराब ये नया लफ्ज है, लेकिन ये करीब को हम इस तरह से के बराबर, जमीन के करीब करीब हो, जमीन के बराबर बराबर। मग़फ़िरत को हमने, जैसे मग़फ़िरत का हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, ये उसी तरह से वो वाले बन जाते हैं अल्फाज। तो ये होते है कि उर्दू से कुछ हम हेल्प ले लेते हैं, कुछ हम जो टेबल कर चुके हैं उससे हेल्प लेके हम हदीस को भी इस तरह से वर्ड टू वर्ड देखते जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको देख लेते हैं, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन द पास, बारीकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के, फताबा अलैकुम, तो उसने तौबा कबूल कर ली तुम्हारी, इन्नहु, बेशक वही, बहुत तवाब, यानी कि बहुत तौबा कबूल करने वाला। अब आप देखिए, इन्नहु, हु भी है, हुआ भी है, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, यानी कि वही है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है जो बार बार पलटता है, बार बार तौबा को कबूल फरमाने वाला है और बार बार रहम करने वाला है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, कौन सा ऑप्शन सी लग रहा है? वो बेहतर है तुम सी। सब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऑप्शन सी। फताबा अलैकुम। अच्छा, इसको करने के लिए ना फटाफट तोड़ लिया करें, बस उसने तौबा कबूल कर ली तुम्हारी। अल्हम्दुलिल्लाह। हुवा तव्वाब, वो सी। खूब अल्लाह ताला ने बड़े खूब जुर्म के तौबा बावजूद कबूल क्या करने वाला। किया? तौबा कबूल की। तौबा कबूल। बी। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एक मरतबा फिर हम देख लेते हैं इसका रवा तर्जुमा। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, ए मेरी कौम, बेशक तुमने जुल्म किया अपने आप पर माबूद बनाकर बछड़े को, लिहाजा रुजू करो तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ, और तुम कत्ल करो अपने आप को, ये बेहतर है तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक। तो उसने तौबा कबूल कर ली तुम्हारी, बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। यहाँ पर हम देख लेते हैं असबाक, दुआ और प्लान। अच्छा जी, असबाक हम ऐसे देख चुके हैं पहले भी, अब हम दुआ को देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह, बेशक मैं, आऊज़ु, पनाह मांगती हूँ या पनाह में आती हूँ, बिका, तेरी ही, अन, के, उस शरीका, कि मैं शरीक करूं, उस शरीका, ये जो है ना टेबल, यानी कि इसमें हम
شین را اور کاف اشارہ کا یہ شروع کو اس طرح سے ٹیبل بنا سکتے ہیں. اور اشریکا یہ اپنی طرف حلا ہو جائے گا جیسے ہم اس کو کس کی طرح لے جائیں. اچھا یہاں پر یہ آ جائے گا کچھ مجبور کے طور پر کا اس سے وانا اور میں عالم عالم ہم جانتے ہیں عالمہ والا ٹیبل اس میں عالم عالمہ یعلم سے وہی عالم و استغفر کا یہ ہم نے تازہ تازہ ٹیبل اپنا کیا ہے. اور توبہ میں توبہ کرتا ہوں کا تجھ سے لیما یعنی کہ وہ تمام کے تمام گناہ لا اعلم جسے میں نہیں جانتا. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو شریک کروں اور میں تجھ سے ان گناہوں کی بخشش طلب کروں جن کو میں نہیں جانتا. اچھا جی اس کے بعد ہے ہمارا پلان کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ میں روزانہ استغفار کروں گا اور توبہ. اچھا یہ ہمارے منہ پہ چڑھا ہوا ہے جیسے میں نے بھی کہا استغفار تو ہم اس کو کوشش کر کے لے آتے ہیں استغفار پر تاکہ یہ ہمارا بولنے کا جو اردو والا اسٹائل ہے یہ ختم ہو کے تھوڑا سا اس میں عربی والا آ جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل کم از کم افعال والے انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. استغفار کروں گی اور توبہ کرتی رہوں گی انشاءاللہ. اسماء میں ہم دیکھ لیتے ہیں نئے اسماء تو خیر کوئی نہیں ہے. قوم سے اقوام نفس انفس اور اسی طرح سے نفوس بھی ہے. ٹھیک ہے کیا جی. اچھا جی ظلمہ ظلمہ یظلم اظلم ظالم مظلوم ظلم ظلام میم کیونکہ یہ ہے صحت مند تو ہمیں جو پہلی والی جو چابی ہے ماضی کی وہی سے اپنے روٹ لیٹر مل جاتے ہیں. ضاد باب ہے اس طرح سے باب نون سے ہے قتل یقتل اقتل قاتل مقتول اور قتل. ٹھیک ہو گیا جی. کمزور جو ہمارے اس میں سے جیسے جیسے باقی آتے جائیں گے ہم جو پڑھ چکے ہیں ان کو ہم کرتے جائیں گے رپیٹ. قال یقول کل قائل مقول قول مقول یوز نہیں ہوتا لیکن یہ کہ یہ بنایا جا سکتا ہے اس کو گرامیٹکلی یہ ٹھیک ہے. تاب یتوب توب تائب متوب الی اور توبتن. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی یہاں پر اتخاذ صرف یہ ایک آیا ہے جو مزید تھی ہی ویسے ہم اس کو کر چکے ہیں جی. سسٹر توحید. اچھا جی اگر آپ کا کوئی نہیں ہے سوال تو اچھا جی یہ تو ہم پہچان سکتے ہیں. قالا سے کون سا بنتا ہے فعل امر. کل بن اچھا جی ظلم سے اسم مفعول کیا بنے گا. مظلوم مظلوم الحمدللہ. قاتل سے کام کا نام مصدر بتائیے گا. قتل 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 کر دینا کسی کو قتل. جی سسٹر توحید آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیجیے. سوری ون میوٹ نہیں ہو رہا تھا. وہ جو آپ سلائڈ دکھا رہے تھے نا مقبول والی اس میں کیا لکھا ہوا تھا. الہی لکھا ہوا تھا. متوب الیہ متوب بھی یوز نہیں نہ ہوتا اس طرح سے خالی یہ مطلب اس کو صرف ہم متوب لکھتے نہیں ہے نا. اگر ہم متوب جی لکھیں گے تو اس کے ساتھ الیہ لکھیں گے. اوکے یہ ابھی ہمارے اور بہت سارے ٹیبل ایسے ہیں گے جس میں مفعول کی اس طرح سے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر ہم اپنے ٹیبل میں لکھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ کوئی بھی ایک حرف جر جو اس کے ساتھ آتا ہی ہے. شکریہ شکریہ. چلیے سسٹر جی ہمارا نورین کیا ہم اس جی سسٹر نورین کیا ہم اس لیے بھی کر سکتے ہیں کہ جو مطلوب الیہ وہ بندے کی طرف ہے اشارہ اس کا. اچھا جی مطلوب وہ تھا جس کی توبہ کو قبول کیا گیا ہو نا. اب تو توبہ کو قبول کرنا یعنی کہ وہ جو جس کی توبہ اب وہ بندہ ہی بنتا ہے جس کی توبہ قبول کی ہوئی لیکن توبہ کو قبول کرنے والا وہ فاعل آ جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ تواب ہے یعنی کہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. وہ اس سینس میں دیکھیں پھر اس میں ہم اسم مفعول نہیں لگائیں گے. اس میں ہم پھر اسی طرح سے اس کو لے کے چلیں گے کہ اس کے تابہ فتابہ الا اور فتابہ علا ان دو کے ساتھ ہی ہم اپنے جو مفہوم ہے اسے یوز کریں گے. اچھا جی یہ ہمارا یہ والا تو ہو گیا ہے. اس کے روٹ میں ڈیش ہے ہاں اسم ڈیش ہے مفعول کے وہی لیے. تو میں کہہ رہی اس کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ نہ لکھیں چھوڑ دیں اس کو نہ لکھیں. اگر آپ پھر بھی لکھنا چاہیں اس صورت میں ساتھ آپ الیہ ضرور لکھا کریں. سوری. ہم بریک لیے بنا ہی آگے جاتے ہیں.
ब्रेक की जरूरत हुई तो हम अपना लेसन कंप्लीट करने के बाद जो जाना चाहे उनको हम छुट्टी दे देंगे। अच्छा जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह से अपने मजीद सीखने के 5 तरह के अफ़आल कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टेबल है तदब्बरा। अच्छा जी, कोई क्विकली मुझे बताए जो हमने अपना फ्रेज याद किया हुआ है। तालीम और मुहासबत तालीम और इस्लाम में बड़ी इस्लाम अहमियत की है, बड़ी इसलिए अहमियत है। इस्तग़फ़ार कीजिए। चलें आपका। हाँ जी, अब हाँ, इख्तिलाफ मत थोड़े से कीजिए, आप लोग इस्तग़फ़ार कंफ्यूज होते हैं, मैं अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करती हूँ, ठीक है। जब आप लिखते हैं ना तालीम और मुहासबा, इसके बाद हम लिखते हैं इस्लाम, फिर हम लिखते हैं इख्तिलाफ, इसके बाद हम लिखते हैं इस्तिग़फ़ार। अब जब आपने इनके अबवाब के नाम याद करने हैं ना, तो इसके पूरा का पूरा वजन बना लिया करें। वजन बनाने के लिए सिर्फ एक बात को याद रखना है, आपने फा आइन लाम, आपने फा आइन लाम से इसके वजन बनाने। जैसे तालीम से हम क्या बनाएंगे? तफ़रील, तफ़ईल। मुहासबा से मुफ़ाइला, वहां भी मुहासबा, मुफ़ाइला, मुफ़ाला, दोबारा। अच्छा जी, आ जाएगा मुफ़ाअला। इस्लाम से इफ्तियाल, इफ़आल। ये पूरा आना चाहिए। देखें, ये हमजा हमजा की जगह पर, सीन की जगह पर फा आ गया, लाम की जगह पर आइन आ गया, दोबारा से अलिफ अपनी जगह पर वापस और मीम की जगह लाम आ गया। ये पूरे होने चाहिए। ये अगर हमें इस्लाम का पता है तो हमें इफ़आल खुद ब खुद समझ आएगा। इसी तरह से जब इख्तिलाफ, हम क्या कहेंगे? इफ्तिआल, इफ्ताल, इफ्ताल नहीं, इफ्तिआल। इख्तिलाफ कहते हैं ना। अच्छा जी, इसके बाद है इस्तिग़फ़ार। पहले हम इस को लिख लेते हैं ना, इस्तिफ़आल, इत्तिफ़ाल, इस्तिफ़आल। ठीक हो गया जी। जब हम पूरे करेंगे तो ये पूरे हो जाएंगे। सीन की जगह पर सीन, क्योंकि इसके शुरू वाले 3 चेंज थे ना, और ये जो फा की जगह पे फा ही आ जाएगा, गैन की जगह फा आ जाएगा, फिर फा की जगह आइन आ गया और इसकी जगह लाम आ गया। इतना भी मुश्किल करने की जरूरत नहीं कि ये सारे मिलाने भी जरूरी नहीं। आप बोल के देखें, तफ़ईल तालीम जैसा है, मुफ़ाअला मुहासबा जैसा, इस्लाम इफ़आल, इफ्तिआल इख्तिलाफ, इस्तिग़फ़ार इस्तिफ़आल। ये इतने है ना। अब जैसे तदब्बुर है तो यकीनन इसका भी कुछ बनेगा। तदब्बर से तदब्बुर, तो इसको भी तो हम बनाएंगे ना। यहाँ पर हम तदब्बरा जब करेंगे टेबल तो इसका बनेगा तदब्बुर या तदब्बुरुन। तफ़अुलुन, तफ़अउलुन, तो हम कहेंगे तफ़अउल। ठीक हो गया। ये जीम तो नहीं लग रहा आपको? दोबारा हम देख लेंगे। तफ़अउल। अब ये एक नया बाब आ गया है। ये एक नया बाब आ गया, इसको हम अपनी फ्रेज में भी शामिल करेंगे। और छठा आज बाब, का जो टेबल है ना, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसमें तब्दीलियां कम है। ठीक हो गया जी। 5 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वो जो हमने शुरू में एक छोटा सा फ्रेज याद किया था वो पूरे हो गए। जैसे हमने कहा था QC2 में, क्या कहा था? अल्लाह ने देने का वादा किया, वादा वहाबा, बल्कि कहा मैं ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। उसके बाद हमने कहा हदा और दाआ और हदा। ठीक हो गया यहाँ तक कंप्लीट करके। उसके बाद फिर हमने आगे जन्ना और दुल्ला को शामिल किया था ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें तदब्बरा का तदब्बुर भी शामिल कर लेंगे। तदब्बरा,
अच्छा जी, तदब्बरा। अब हम इसको अगर फा आइन लाम पर उतारे तो देखें क्या चीज ज्यादा है इसमें। हमारे पास तो सिर्फ फा है, आइन है और लाम है। इसका मतलब है कि अगर हम कहते हैं दाल आ गया है फा की जगह पर, बा आ गया आइन की जगह पर, रॉ आ गया लाम की जगह पर, तो कौन सा लफ्ज ज्यादा है? एक तो ता ज्यादा और एक बा, एक बा एक ज्यादा की है। वजह से। एक बा ज्यादा है। ये दो बा को हमने इकट्ठा करके तशदीद दे दी और ज्यादती एक ता की है, ये बन गया तदब्बरा। रूट लेटर क्या निकले हमारे पास? दाल बेरे दाल बा बारा। दाल बा और रा, दबरा। ठीक हो गया? ये इस तरह से भी पूरे टेबल बन जाते हैं। अब हमने तशदीद वाला एक किया हुआ है अल्लामा। ठीक हो गया? अल्लामा और तदब्बरा, इनको हम क्यों नहीं एक जैसा बना सकते? इसमें ये जो एक ताज ज्यादा है ये इससे बिल्कुल अलग कर देती है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ तशदीद ज्यादा थी, दो लाम हो गए थे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ता भी ज्यादा है, तदब्बरा। ठीक हो गया? तदब्बरा। हम आगे बढ़ते हुए फिर इसका हम देखेंगे क्या इसका बनेगा, मुदारे, अमर, और इसके बाद तफअुल हमने देखा, तदब्बुर यहाँ पर बन जाएगा इसका मस्तर। तो ये जो टेबल है तदब्बर वाला, इसके जैसे जितने भी तमाम के तमाम टेबल होंगे, इनमें खास बात क्या होगी, इसमें खुद से काम करने वाला जो मफहूम या माना पाया जाएगा। जैसे हम कहें कि हम कुरान पाक पर क्या करेंगे, तदब्बुर करेंगे। तदब्बुर करने का माना क्या है कि खुद से हमने उस पर गौर व फिक्र करनी है। QC1 में भी हमने सीखा था ना तदब्बुर करना, खुद से तदब्बुर करना। कौन सी मतलब कौन सा तरीका यूज करते हैं हम खुद से समझने के लिए? किसी को याद है? छोटी सी मिसाल दी थी कि इस तरह से करेंगे तो हम उसको कहेंगे तदब्बुर करना, और ऐसे अगर हम कहेंगे तो इसको रवानी से पढ़ जाएंगे तो ये तदब्बुर करना। किसी को याद? गौर फिक्र करना है तदब्बुर हाँ, इसमें ये मैं आपको वो याद कराती हूँ, वो हमने कहा था कि अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर आपने देखा पढ़ा, अब आपको उस पर गौर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने कोई सी भी साइंटिफिक जो स्टडीज वाली बुक दे दी जाए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर, उसको जब तक आप गौर से समझ के नहीं पढ़ते ना, आपको समझ नहीं आएगी। तो फिर हम कैसे कुरान पाक को इतना हल्का ले लेते हैं कि हम इसको बगैर किसी से सीखे या इस पे गौर किए हुए समझ लेंगे ना। तो इससे इसको आप याद रखिएगा कि तदब्बुर जो है खुद से जो सीखना। अब तदब्बुर जैसे तफक्कुर हो गया, खुद उस पे फिक्र से करना, कोशिश करना, देखना। इसी तरह से हम तजक्कुर करेंगे, यानी कि खुद उसको याद करने की। यानी कि जहां पर ता वाला इस तरह से हम एक लगा देंगे इसके साथ इजाफा, वहां मफहूम जो होगा वो हो जाएगा खुद से करना। अब ये अल्लामा को भी अगर हम करेंगे ना, ताल्लामा, तो ये भी तदब्बरा जैसा हो जाएगा। यानी कि ये हमने कहा था ताल्लमा वाली भी तो हमने एक हदीस पढ़ी, अगर किसी को फौरन से याद आ रही है जहन में तो बताइएगा। ये है खुद से ताल्लमल कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें क्या था, खुद से सीखना। यानी कि पहले खुद से सीखना है, उसके बाद सिखाना है ना। ये जो ताल्लमा, इसमें भी खुद अपने सीखने वाली बात की गई थी। और हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो ताल्लमा है, इसमें खुद सीखने में ज्यादा मेहनत है, और अल्लामा उसने सिखाया। इसका ये जो अल्लामा है ना, इसका माना हो गया था उसने सिखाया। तो ये जो ताल्लामा की ता है, इसने बताया कि खुद सीखना है। तदब्बरा खुद तदब्बर करना है, यानी कि खुद गौर व फिक्र। इसके लिए तदब्बरा तो होगा उसने तदब्बर किया, तदब्बर किया। जब इसका हम लाएंगे ना अपने कन्वर्सेशन में, या हम अपने ये जब किसी को बताने के लिए यूज करेंगे तो हम मस्तर यूज करेंगे, उसकी होगा तदब्बुर। उसको भी हम देख लेते हैं। और ये भी हम देखेंगे कि ये वाला टेबल बाकी टेबल्स की निस्बत थोड़ा बोलने में थोड़ा सा, ये जुबान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वैसे सीखने में इसकी तब्दीलियां कम है, तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले सब मुस्कुरा लें ताकि ये आपको ऐसे मुश्किल मुश्किल सा ना लगने लग जाए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तज़क्करा
और तवल्ला, तवफ़ा, तबय्यना, तवक्कला, ये वो टेबल हैं जो कुरान पाक में ज्यादा यूज हुए। अब मैंने आपको बताया कि तदब्बरा में हमारे पास दाल, बा और रा है रूट लेटर। अब आप मुझे जल्दी जल्दी से बताएंगे तज़क्करा के क्या होंगे? दाल काफ रा दाल, काफ, रा, और इसका क्या बन जाएगा मस्तर? तज़क्कुरुन तज़क्कुर। अभी हम इसको तनवीन के बगैर कर लेते ताकि हमें बेहतरीन समझ आती जाए। जी रूट लेटर ता, रा बा सौद ता, रा, ता को हमने क्यों लिख दिया? रा, बा और सौद। रा बा अच्छा, सौद। तरब्बुस, तरब्बुस हम जब जाएंगे ना अपनी सूरह बकरा में आगे चलते जाएंगे तो जहाँ पर औरतों के इद्दत वाली बात की ना तो उसमें तरब्बुस यानी कि रुके रहने वाली बात की, तो ये हम वहां पर देखेंगे। इसका आ जाएगा तरब्बुस। जब हम अपना दूसरा पारा कवर करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या चीज समझ आ रही है कि ये जो अल्फाज हम पढ़ रहे हैं ये इंशाल्लाह हमने कुरान पाक में जब अप्लाई करने हैं तो इंशाल्लाह ये हमें वहां पर बहुत काम आएंगे। तरब्बुस या तरब्बुसुन। अच्छा जी, तवल्ला को भी छोड़ देते हैं। तवक्कला, वाओ काफ लाम वाव काफ वाव लाम और हम क्या करते हैं? तवक्कुल तवक्कुल करते हैं। अब हमने इसको तवक्कुल तवक्कल नहीं कहना, ठीक है? हम अल्लाह ताला पर तवक्कल नहीं कर रहे, तवक्कुल कर रहे हैं। तवक्कुल। तफर्रका, फारोक हम क्या करते हैं? तफर्रुक तफर्रुक। तो भी हम उर्दू में यूज करते हैं ना, तफर्रका, तफर्रुक। ठीक हो गया जी। तकब्बला, काफ वाव बा लाम तकब्बुल तकब्बुल। का बा लाम तकब्बुल। ठीक हो गया। एक और कर लेते हैं। तनज़्ज़ला, नून जा लाम नून ता लाम तनज़्ज़ुल तनज़्ज़ुल। अब ये जो नून, जा और लाम ये क्या बता रहा? हम इस मादे से कोई और कर चुके हैं? नाज़ला अनज़ला नज़ला नज़ला भी, नज़ला भी, अनज़ला भी। तनज़्ज़ुल भी उर्दू में यूज होता है ना। ये जो मजीद फी के ज्यादातर जो मसादिर है ना ये हम उर्दू में यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद छोटे छोटे काफी सारे लिखे हुए हैं। तबर्रजा, इसी तरह से तहज्जदा, तअख्खरा, तअल्लमा भी आ गया। ये तअल्लमा हम कर चुके हैं। तबद्दला, आज हम बात कर रहे थे इस तबदला की, ये तबद्दला भी आ गया यानी कि बादाम, दाल और लाम के साथ भी। तयम्मम, तयम्मम से हम क्या करेंगे? तयम्मुम 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 तो हम यूज भी करते हैं ना। जी तयम्मुम वैसे किसको कहते हैं? जो मट्टी के साथ बगैर पानी के वजू करना, बगैर पानी के। और इसका पानी हम मुयस्सर रूट ना हो लेटर तो क्या निकालेंगे? मट्टी से। या मीम हाँ ये या ठीक है। ये इसमें एक या है ना, इसको इसीलिए अभी ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते। जो कमजोर वाले ना वो हम बाद में करेंगे। एक और यहाँ पे होगा तमत्ता, मीम ता आइन मीम, ता और आइन। अच्छा जी, इसका क्या बनेगा? तमत्तु ये तमत्तु का हम यूज करते हैं। तमत्तु। ये हज्जे तमत्तु, ये वही भलाई हम बोल रहे थे, हमें पता ही नहीं होता हम एक टेबल का मस्दर बोल रहे हैं। ठीक हो गया जी। हज्जे तमत्तो कहते हैं ना, हज्जे तमत्तो करना। इसमें वो एहराम का थोड़ा फर्क होता है ना कि एक ही एहराम से 2 उम्रा और हज करना, ये वाली जो चीज है। अच्छा जी, एक और मुझे नजर आया। इसके बाद हम फिर अपनी स्लाइड पे चले जाएंगे। तफक्करा, फा काफ रा तफक्कुर तफक्कुर, ये भी हम बोलते हैं ना उर्दू में, तफक्कुर। अब यहाँ पर हमने क्या समझा कि तज़क्करा से तज़क्कुर, तदब्बरा से तदब्बुर, तवक्कला से तवक्कुल
اور اس کا جو ہم نے باب کا نام رکھا ہے وہ کیا ہے؟ تفعل. تا فا عین کے اوپر تشدید اور پیش، اس کے بعد لام، تفعل. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم آگے بڑھتے میم ہیں. یہ تکبل، میم جی تکبل سے وہ قابل نکلا ہوا ہے، کون سا والا؟ تکبل سے قابل نکلا ہوا ہے لفظ. میں سمجھ نہیں پائی. قابل لفظ ہے نا، قابل، قابل وہ تکبل سے نکلا. ہاں جی ہاں، یہ جو حابیل قبیل والا قابل ہے. قابیل، وہ دیکھیں توکل اور قابیل تھوڑا چینج ہو جاتا ہے نا. قابیل، توکل. آپ یا پھر قبیل سے کہہ رہی ہیں؟ نہیں جی تکبل، تقبل سے، تقبل سے. وہ پھر تقبل سے وہ تقبیل تو نہیں ہے نا. قابیل اس میں تو تا ہے ہی نہیں ہے. یہ جو تدبرہ والے اس میں تا رہے گی، جو ہم زیادتی کریں گے نا وہ رہے گی. یہ جو ہم نے زیادہ کرنا ہے نا، یہ ہم نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے آگے. ابھی ہم ٹیبل دیکھتے ہیں نا، پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اس کی. یہ ہم سلائڈ تقریباً یہ جو ساری نا یہ ہم ویسے اس کو کر چکے ہیں. تدبرہ، اس نے غور و فکر کیا، یعنی کہ خود سے غور کیا. تدبر کے صیغے فعلا کے ہیں، جیسے کہ ہم شروع میں تا لگا دیتے ہیں اور اینڈ پہ جو تشدید ہے فعلا میں سے ہم نے کیا کرنا، فا سے پہلے ہم نے تا لگا دیا، عین کے اوپر ہم نے تشدید لگا دی. تو تدبرا تفعلا، یعنی کہ یہ اس طرح کا ٹیبل ہو گیا. ہم اگر کہیں کہ جو ماضی ہے وہ تفعلا ہے اور مصدر ہے تفعل. اب کیا کرتے ہیں، اب ہم تدبرا سے شروع کرتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے پورا ٹیبل بنا لیتے ہیں. تدبرا، اس نے غور کیا. تدبرو، ان سب نے غور کیا. تدبرتا، آپ نے غور کیا. تدبرتو، میں نے غور کیا. تدبرتم، آپ نے غور کیا. تدبرنا، ہم نے غور کیا. تدبرت، تدبرت، اس عورت نے غور کیا. تدبرا، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا اور تدبرت. یہ بولنے میں تھوڑے سے مشکل ہے، روانی نہیں آتی نا جلدی، لیکن انشاءاللہ ہم پریکٹس کرتے جائیں گے تو اس کو ہم انشاءاللہ آسان بنا لیں گے. تدبرا، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا اور تدبرت، اس عورت نے تدبر کیا یا غور کیا. غور کیا والا معنی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پھر معنی میں مصدر لانا پڑتا ہے. حل تدبرا، کیا اس نے غور کیا، تو ہم کیا کہیں گے، نام تدبرا. نام تدبرا. نام جب یہ تدبرا. ڈائلاگز آ جائے نا تو انمیوٹ کر کے تیزی سے آگے بڑھا کریں، فٹافٹ آنسر کیا کریں تاکہ ہم اپنی کلاس کو ٹائملی کمپلیٹ کر لیں. حل تدبرو، نام تدبروا. تدبرتا، نعم تدبرت. حل تدبرتم. نعم تدبرنا. اور آج میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہے، جو کنورسیشن ہوتی تو ہمیشہ ڈائلاگ اسی طرح سے. پھر ہم کیوں کرتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو بار بار نئے ٹیبل آ رہے ہیں نا، یہ ٹیبل کی پریکٹس ہو جاتی. جیسے میں کہہ رہی تدبر، آپ بھی کہنے تدبر. ٹھیک، میں کہتی ہوں تدبرو، آپ بھی آنسر کر رہے ہیں. جب میں کہتی ہوں تدبرتا، آپ کی تدبرتو کی پریکٹس ہو گئی. تدبرتم، تدبرنا کی پریکٹس ہوگی. اس لیے سب انمیوٹ کیا کریں. اب جب سب بول رہے ہیں تو پھر نہیں پتا چلتا کس کی آواز ہے کس کی نہیں، تو بغیر شرمائے فٹافٹ سے انمیوٹ کریں اور سب کے سب آنسر کیا کریں. توکل تو، اس کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، ہم نے توکل کا ٹیبل نہیں کیا ہوا. تو اب ہم کرتے ہیں تدبرا سے. اس سے پہلے ہم جو بنا رہے تھے نا اپنے یہ جو مضارع بنا رہے تھے، اس میں کیا ہو رہا تھا، اس میں تھوڑی تھوڑی سی تبدیلیاں اس طرح سے ہو رہی تھی کہ زیر آ رہی تھی نا. اب ہم نے کیا، یتدبرو، تدبرا، یتدبرو، کہاں تبدیلی آئی ہے، صرف یہ جو ایک یا آتی ہے مضارع وہی ایک. ہاں جی، وہ ایسے ہی نا جیسے ہم کہتے تھے جیسے فعلا سے یفعلو، نصر سے ینصرو، یعنی کہ جو شروع کی تبدیلی ہے وہ تو آنی ہی آنی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو مضارع والی تبدیلی ہے نا، یہ تو آنی ہی ہے. اس کے بغیر تو ہمارا مضارع کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. اور یہ جو پیش ہے اور یہ جو واو نون ہے، یہ بھی اس کی اپنی تبدیلی ہے نا، یہ اس میں اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی.
पूरा का पूरा तदब्बरा, ठीक है, तदब्बरा यानी कि सिर्फ तदब्बरा की पेश को जबर को पेश में बनाया मुदारे की वजह से, तदब्बरा या तदब्बरू, यहाँ तक समझ आ रही, क्लियर है ना ये? जी तदब्बरा या तदब्बरू, ठीक हो गया। अब ये तदब्बरू को आगे लेके चलते हैं, वो गौर करता है या करेगा, या तदब्बरू या तदब्बरूना, वो सब गौर करते हैं, ततदब्बरू आप गौर करते हैं, अतदब्बरू मैं गौर करता हूँ, ततदब्बरूना आप सब गौर करते हैं, नतदब्बरू हम सब गौर करते हैं, हिया ततदब्बरू वो औरत गौर करती है, यतदब्बरू यतदब्बरूना ततदब्बरू अतदब्बरू ततदब्बरूना नतदब्बरू हिया ततदब्बरू। एक मर्तबा हम इसको माजी और मुदारे को इकट्ठा करते हैं, तदब्बरा तदब्बरू तदब्बरता तदब्बरतु तदब्बरतुम तदब्बरना तदब्बरत, यतदब्बरू यतदब्बरूना ततदब्बरू अतदब्बरू ततदब्बरूना नतदब्बरू और हिया ततदब्बरू। मुदारे के हम देख लेते हैं, अगर कोई डायलॉग है तो उसे करते हैं ताकि आपकी भी यहाँ पर प्रैक्टिस हो, फिर इंशाल्लाह इसको हम एंड पर सबसे करवाएंगे। अच्छा जी, हल यतदब्बरू, नाम यतदब्बरू हल यतदब्बरूना, नाम यतदब्बरूना। अच्छा आज अगर हम इस डायलॉग को उल्टा कर ले, हल अतदब्बरू, तो आप क्या आंसर करेंगे? नाम ततदब्बरू। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ हल नतदब्बरू, नाम ततदब्बरूना। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बेहतरीन प्रैक्टिस है अभी। हाँ जी, ये इससे ये हमें पता चल गया कि जो डायलॉग में जहाँ पे हमें उल्टाना है ना, उसकी हमें पूरी पूरी अब समझ आ गई, उसमें अब किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, किसी को कोई भी कंफ्यूजन इसमें, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गए हैं। अच्छा जी, हम कुरान का इजाफा करते हैं, और जैसे हमने देखा था कि कौला वाला टेबल लें तो उसमें ली का इजाफा कर लेते हैं, हर पे जर कोई ना कोई यूज हो जाता है। इसी तरह से हमने कहा था कि अगर बात करनी हो, जैसे अभी ताबा की बात की तो अला या इला आ गया, तो ये जो ये अब कुरान में गौर फिक्र करना है ना, तो उसके लिए फी लगा लेंगे, हल यतदब्बरू फिल कुराना, क्या वो कुरान में गौर करता है? हल यतदब्बरूना फिल कुराना, कुरानी फिल कुरानी नी कहना है, ठीक हो गया जी। हल ततदब्बरू फिल कुरानी, नाम ततदब्बरू फिल कुरानी। हल ततदब्बरूना फिल कुरानी, ततदब्बरू फिल कुरानी। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अच्छा जी, ततदब्बरू क्या इसका माना हो जाएगा? आप गौर करते हैं, और या आप गौर करेंगे, दो दर्जे आ जाएंगे। अच्छा जी, आप सब गौर करते हैं, ततदब्बरूना। हल यतदब्बरूना फिल कुरानी, अल्हम्दुलिल्लाह। यतदब्बरूनल कुराना, ये गौर से देख भी लेंगे, यतदब्बरूनल कुराना, वो सब गौर करते हैं, वो सब गौर करते हैं कुरान में। यानी फी के बगैर भी यूज हो गया, और जब हम फी कह रहे थे तो हमने नून के नीचे जेर लगाई थी, वो जरूरी है, ठीक हो गया जी। अभी याद रखने के लिए ऐसे याद रखें कि जैसे हम कहते हैं बिस्मिल्लाही, ठीक हो गया जी, तो वो जो बिस्मी के नीचे जो जेर लगाई है वो इस वजह से लगाई है, मिनश शैतानी जेर लगाई है, तो जब फी लगाएंगे तो फिर कुरान के नीचे जेर लगाएंगे, लेकिन अगर हमने यहाँ पर फी का जेर नहीं यूज किया, यतदब्बरूनल कुराना, तो फिर यहाँ पर जरूरत नहीं है हमें फी लगाने की, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ये है कि इसका जो फेले अमर है वो भी जैसे एक सिर्फ तब्दीली हमने की, क्या लगा के पेश लगाई थी तो मुदारे बन गया। अब क्या करना है, तदब्बरा से हमने तदब्बर कर लेना, तदब्बर, और अगर हम इसको करना चाहें अपने फेले मुदारे से तो क्या करना है,
वही सिंपल सा रूल, मुदारे वाली या को कट किया, पेश को गिराया और इसको साकिन कर दिया। क्या लफ्ज हमारे पास बच गया? तदब्बर। तदब्बर। थोड़ा थोड़ा सा फर्क कर माना चेंज हो जाते हैं। जी सिस्टर रोबीना। जी सिस्टर बताइएगा, कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कीजिए खुद को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो फिर से ले लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, इसको हम लेके चलते हैं कि तदब्बरा से तदब्बर। अल्लामा से अल्लिम, हासबा से हासिब, असलमा से अस्लिम, इख्तलफा से इख्तलिफ, इस्तगफरा से इस्तगफिर। सबके आप देखिए कि आइन कलमा पर क्या आ गई है? जेर आ गई है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर सिर्फ एक सुकून लेके आना है बस। वो एंडिंग पे जो एंडिंग करनी हमने वहां पर अपने सिर्फ एक सुकून ले आना। तदब्बरा से तदब्बर, गौर कर, तदब्बरू गौर करो, ला तदब्बर मत गौर कर, ला तदब्बरूना मत गौर करो। ठीक हो गया जी? तदब्बर तदब्बरू, ला तदब्बर ला तदब्बरू। अच्छा जी, तदब्बर हम क्या आंसर करेंगे? अतदब्बर। अतदब्बरू, तदब्बरू तदब्बरू। हम गौर करेंगे। अच्छा जी, तवक्कला वाला छोड़ते हैं। अब यहाँ पर वही रूल लेके आना है जो हम कहते हैं ना कि तदब्बरा था फेल के, ये जो हम ना हमारा फेल माजी है, इसमें हम ऐसा करेंगे कि इसके मुंह पर मुंह लगा देंगे, यानी कि एक मीम लगा के उसके ऊपर पेश लगा देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे? फाइल में जेर और मफूल में जबर। याद रखने के लिए सिस्टर अख्तर ने आपको बताया कि पहला वाला याद कर ले, मुअल्लिम मुअल्लम। इसी तरह से अगर हम याद करेंगे मुस्लिम, तो ये तो भूलता ही नहीं ना, हम मुस्लिम है। हम ये तो नहीं कहते हम मुस्लिम है ना, हम कहते हैं मुस्लिम। अब मुस्लिम से याद रख लीजिए, मुअल्लिम से याद रख लीजिए, जिससे आपको मुहासिब से जो आपको एक इजी लगता है ना, आप उसको एक अपना हिंट बना लीजिए। मोमिन, इसी तरह से जो भी आपको आसान लगता है उस एक को याद रखें। अब जितने भी मजीद सीख है वो इसी तरह से बनाई जाने। मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन। ठीक हो गया जी? मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन। और अगर तनवीन के बगैर पढ़ते हैं मुतदब्बिर मुतदब्बर। ठीक हो गया जी? ये देखें, ये सारा एक ही कायदा चलेगा। और हम इसको जो हमारा मस्तर था उसको हम शुरू में कर चुके हैं एलिब्रेट, किसको किस तरह से करना। तदब्बर से तदब्बुर और तफाउल हमारा बाब बन जाएगा। मुतदब्बिर मुतदब्बर और इसके बाद है तदब्बुर। एक बड़ी मजे की चीज है इसमें, अब वो मैं आपसे पूछूंगी अगर कोई पहचान सके तो। अच्छा जी, हल हुम मुतदब्बिरूना फिल कुरान। अब आपने जवाब से पहले मुझे एक एक लफ्ज का जरा माना बताएं। हल का क्या माना है? क्या? हम वो सब वो सब। मुतदब्बिरूना तदब्बर करने वाले हैं। करने वाले हैं। फी में कुरानी अल कुरान में। जब आपके सामने ये फ्रेज आई थी, आपको लग रहा था कि आप इतनी आसानी से तर्जुमा कर लेंगे? तो हम पहली नजर में देख के हम फटाफट परेशान होते हैं। हमने देखा वो अरबी लिखी हुई है, और अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे मोबाइल पे कोई स्टेटस वगैरह आ गया, कोई फेसबुक की स्टोरी या बुक में हमारे सामने अरबी आती है ना, हम उसको देख के आगे गुजर जाते हैं। अब क्या किया करना, अब हमने इस पे ऊपर तदब्बुर करना है, गौर करना है कि क्या हमें इन अल्फाज के, चले सबके नहीं आते, ये तो नहीं हो सकता कि कोई एक दो या तीन, पांच में से तीन भी ना आते होंगे। इसको इस तरह से देख लीजिए। बाकी जो हमारे पास डिक्शनरीज होती हैं मोबाइलों में, अब तो काफी सारी है, एक डिक्शनरी और भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उस पे रूट लेटर डाला करें। अब जैसे मुतदब्बिर, आप इसका पहले वाव नून गिरा के इसका निकालने के, वाव नून जमा की अलामत है, आपके पास पीछे फेल बच गया, इसम फाइल बच गया मुतदब्बिर। आप मुंह को निकाल दें, अब पीछे क्या बनता है आपका? तदब्बिर।
तदब्बिर से आपको समझ में आएगा कि यकीनन ये टेबल है, और अगर टेबल में से आप ता गिरा के तशदीद बाकी कराए, आपके पास दाल 12 रूट आ जाते हैं। रूट लेटर इस तरह से निकालने हमने, और इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस हम करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आज आपने तर्जुमा किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम इंशाल्लाह इसी तरह से कर लेंगे अपने तर्जुमे। अच्छा जी, हल हुम मुतदब्बिरूना फिल कुरआन, क्या मान इसका जवाब क्या निकलेगा? नाम 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 हुम मुतदब्बिरून फिल हमने एक कुरआनी। सादा सा कुलिया याद किया, हुआ का जवाब हुआ से, हुम का जवाब हुम से, अंता का जवाब अना से, अंतुम का जवाब नहनु से। तो ये उसी तरह से हमारे कुलिये यूज हो जाते हैं। अब आपके सामने ये पूरा टेबल है। अब टेबल को एक नजर देख के मुझे बताइए आपको कौन सी एक चीज इसमें खास नजर आ रही है इस टेबल में? इसमें माजी का सीगा और जो अमर जमा है एक जैसे हैं। एक जैसे हैं, ठीक हो गया। और कोशिश कीजिए इंशाल्लाह, जब तक मैं ये लिखती हूँ उसके बाद तो मैं बता ही दूंगी। फिर सारी चीजों को गौर से देखिए, फिर इंशाल्लाह एक मजेदार सी चीज आपके साथ शेयर। मस्तर जो है इसमें मुजारे में पहले दो जो हैं वो गौर करता है आगे उसकी बजाय। अच्छा, ये जो वो वाला तर्जुमा आया है ना, ये उर्दू की मजबूरी है। ओह, वो हम यहाँ से देखते हैं, वो माजी से देखा करेंगे। अगर तो यहाँ पर वो वाला तर्जुमा आता है ना, जैसे वो गया ज़हाबा, उससे क्या डिसाइड हो जाता है कि अमूमन ऐसे अल्फाज जिसका वो वाला तर्जुमा उसका मफऊल नहीं होता। नतदब्बरु, अच्छा जी, हमने देखा युअल्लिमु युहासिबु, सब में जेर थी, यहाँ क्या है, सब में जबर है। वहां पर मुदारे में अमर में भी जबर आ गई थी। अब इस पूरे टेबल में सिर्फ और एक जेर में जबर की जा रही, जेर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक जेर है इस पूरे टेबल में। वो कौन सी है? इस्मुल फाइल वाली। ठीक हो गया जी। अब ये जो टेबल है इसकी तब्दीलियां बहुत कम है। अब हमें समझ आ गई कि तदब्बरा, यतदब्बरु, तदब्बर, मुतदब्बिर, जैसे हमने याद किया था जन्ना, यजुन्नु, जुन्ना और जन्नुन। ठीक हो गया जी। जन्नुन वो भी क्या था, तशदीद वाला था। सारे के सारे मिलते जुलते थे, थोड़ा थोड़ा फर्क कहाँ पे था, वो थोड़ा थोड़ा सा फर्क हमने सीखा था अपनी जेर जबर पेश इनकी हरकत की वजह से। जी सिस्टर तौहीद। मैं एक बात पूछ रही थी कि उर्दू में नहीं कहते ये बड़ा मुदब्बिर शख्स है, तो बिल्कुल वो उसी को क्या कहते हो गौर करने वाले। अच्छा, इसी तरह से होते हैं, हम यूज कर रहे होते हैं, हम बहुत से इंग्लिश के अल्फाज इसी तरह से यूज कर रहे होते हैं ना। जैसे आप देखें कि अगर कोई बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानता, वो भी आपको बैट बॉल ही बताएगा ना। अब बैट और बॉल दोनों ही अल्फाज इंग्लिश के हैं। अब वो इसको इंग्लिश नहीं बोल रहा, वो बोल अपनी पंजाबी या उर्दू ही रहा है, लेकिन इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से जब हम अरबी के बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये अरबी के अल्फाज हैं, तो जब हम उनके माना वगैरह निकालते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है कि ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले अल्फाज हमें पहले से आते थे। यानी कि कुरान सीखना हमारे लिए बहुत आसान है, इसलिए भी कि हमारी जो उर्दू जुबान है ये बहुत ज्यादा अरबी से मिलती जुलती है। ठीक हो गया जी। अब पूरा टेबल करना है। अब मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत कोई रवानी से जल्दी जल्दी करेगा, मेरा अपना जरा थोड़ा स्लो है ये टेबल, तो कौन आएगा, जरा हैंड रेज कर लीजिए। अच्छा जी, सिस्टर फेरोजा, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया, आप कीजिएगा। सिस्टर फेरोजा, सिस्टर कोमल और सिस्टर आसिया इकबाल, आप तीनों पहले इसी तरह से तरतीब से कर लीजिए माजी, मुदारे और फेल अमर वाला पूरा। तदब्बरत, तदब्बरतु, तदब्बरतुम, तदब्बरना, तदब्बरत। तदब्बरत, ठीक हो गया जी। यतदब्बरु, यतदब्बरूना, ततदब्बरु, अतदब्बरु, ततदब्बरूना, नतदब्बरु, ततदब्बरु। ततदब्बरु, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जी
تدبر تدبروا لا تتدبر لا تتدبروا متدبر متدبر ایک منٹ یہ مجھے نا ندبر تدبر 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 الحمدللہ. اب آپ تینوں ہینڈز اپنے ڈاؤن کیجیے گا. اب میں نیکسٹ 3 لوگوں کو بلاؤں گی, وہ لوگ کریں گے. ٹھیک ہو کیا جی؟ سسٹر تسکین کر لیں, سسٹر قمر اور سسٹر رفت طارق. الرحمن الرحیم. Question ہے please. تدبر تدبروا تدبرتا تدبرتو تدبرتم تدبرنا تدبرت. يتدبروا يتدبرون يتدبروا يتدبرون تتدبروا أتدبروا تتدبرون نتدبروا هي تتدبروا. یہ ٹیبل تھوڑا سا مشکل ہے نا, اس کو ہم تیزی سے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ جو ہماری زبان میں سے تھوڑی ٹوسٹ ہوتی ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے سے الفاظ زبان کے لیے مشکل ہے نا, تھوڑے منہ پہ چڑھنے مشکل ہے. یہ جو اننیسسری مائکس آن ہو گئے, پلیز ذرا اپنے مائکس آف کیجئے. اور اگلی سسٹر جنہوں نے کرنا یہ ٹیبل, صرف وہ اپنا مائک آن رکھیے گا. تدبر سے جنہوں نے شروع کرنا ہے. جی, جن کے گلے خراب ہیں دوائیاں لیجیے. جی سسٹر رفت, آپ نے کرنا ہے اب آگے سے ٹیبل تدبر سے. جی چلو جی کر ہاں یہ جی کریے. کمر کا تدبر تدبر تدبروا لا تدبر لا تدبروا تدبر. ٹھیک ہے کیا؟ ہم نے ایک تا وہ والی بھی تو ملانی ہے نا, جو ہم نے مدارے والی تا وہ بھی تو یہاں پر لے کے آنی ہے نا, جو آپ کا والا ہے. ہاں جی متدبر متدبر تدبر. اچھا جی, اب سسٹر تدبر. اچھا جی, اب سسٹر نگہت پرویز آپ ماضی کر لیجئے, اور سسٹر آئی فون جو سسٹر رفت ہی ہیں شاید, آپ کیجیے گا اس کا مدارے, اور سسٹر جویریہ کریں گی تدبر سے شروع. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ تینوں یہ والا کر کے تو اپنے ہینڈ ذرا ڈاؤن کیجیے گا, پھر میں دیکھیں گی باقی رہ جائے گا. ماضی جی ماضی تدبر تدبروا تدبرتا تدبرتو تدبرتم تدبرنا هي تدبرت. تدبرت. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سسٹر, هي تدبرت. سوری یہ والا کرنا ہے. میں نے میرا خیال ہاں سسٹر رفت سے مجھے لگتا ہے میں نے کہا تھا یہ تدبرو. یہ آپ نے مجھے کہا تھا. جی یتدبروا یتدبرون تتدبروا اتدبروا تتدبرون نتدبروا تتدبروا. الحمدللہ. جی سسٹر جویریہ. تدبر تدبروا لا تتدبر لا تتدبروا متدبر متدبر تدبر تدبر. تدبر. ٹھیک ہے, تدبر. جی سسٹر سمیہ رہے گی. سسٹر سمیہ اب آپ پتہ کیا کریں گی, تدبرہ سے شروع کریں اور تدبر تک پورا ٹیبل کریں. تدبرا تدبروا تدبرتا تدبرتو تدبرتم تدبرنا تدبرت. يتدبروا يتدبرون تتدبروا أتدبروا تتدبرون نتدبروا تتدبروا. تدبر تدبروا لا تتدبر لا تتدبروا. متبرون متدبرون 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 تدبر. تدبرون بھی ہو سکتا ہے. تدبر تدبر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا, تو ہمیں ذرا بولنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ الحمدللہ. یہ ہمارا یہاں پہ ہوا ہے کمپلیٹ پورا ٹیبل. اچھا جی, تدبرہ سے یتدبرہ, پھر تدبر متدبر متدبر اور تدبر, یہ ہماری 6 چابیاں آ گئیں.
अब हम ऐसा करते हैं, अपनी वर्क बुक पे आ जाते हैं। अच्छा सिस्टर, अगर तो आपकी वर्क मैम बुक जो हम यूज कर मैम रहे हैं एक वही सवाल है, मैम जी एक सवाल है, ये जो तदबीर होता है इससे, ये क्या चीज है? मस्तर है, ये क्या है? कौन तदबीर, तदबीर? ये तदबीर ना, हाँ जी तदबीर, तदबीर हम अच्छा बोलते हैं, ये क्या है? ये मैं आपको बताती है, ये होगा। अब हम इस पे चले जाते हैं, क्विकली जाते हैं, ठीक है, ज्यादा देर नहीं करेंगे। तदबीर, तदबीर, कौन सी आवाज, कहाँ पे ये वजन पूरा हो रहा है? तफ़ईल। तफ़ईल। ईल पे। अब हम क्या करेंगे, हम तदबीर से पहुंचेंगे माजी पे। तफ़ईल का माजी क्या है? फ़अला। तो तदबीर का क्या होगा? दब्बरा, ठीक है। अब हो जाएगा दब्बरा, युदब्बिरु, दब्बिर, मुदब्बिरुन, मुदब्बरुन और तदबीरुन, ठीक हो गया। होते वही रूट लेटर हैं, वो जब आपका फेल बदलेगा तो उसके हिसाब से वो जो उसके मसादिर, उसके इसम फाइल, मफूल सब उसी में चेंज चलते चले जाएंगे ना। सिस्टर निकत, आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई? जज़ाकल्लाह जी, सिस्टर यहाँ हो रही है असल तब्बारा का में ये वो मतलब गौर करना। नहीं, तदबीर तो साजिश करना नहीं होता, तदबीर करना तो तदबीर करना, दब्बारा से। तदबीर सिर्फ साजिश नहीं ना होती, अच्छी चीजों के बारे में भी तो प्लानिंग हो जाती है ना। अच्छा अच्छा। अब आप देखिए ना, यानी आलिमा उसने जाना, अल्लामा उसने सिखाया, थोड़े थोड़े जैसे हमने कहा था तब्दीलियां आएंगी ना, थोड़े थोड़े माना भी चेंज होंगे। और अभी आप देखेंगे, अभी आप एक दफा हैरान भी होंगे कि माना आप देखें कि एक जब हमारा सिंपल वाला होगा उसमें माना क्या बन गया, और जब मजीद ही में आया तो उसका माना क्या हो गया। और ये अब इसको इंशाल्लाह जब वो टेबल आएगा ना तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो उर्दू में भी ऐसे हो जाते हैं कि एक ही लफ्ज होता है, थोड़ा सा फर्क उसमें डालते हैं किसी अलिफ का, या का, वाव का, और वो उर्दू में भी माना उसी तरह से चेंज हो जाया करते हैं। जी, इसी तरह नज़ला और इंजाल भी दोनों अलग अलग वो अफ़ाल भी के उसी साथ तरह हैं। से थोड़ा थोड़ा सा माना भी चेंज हो जाता है, थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां। और सम टाइम ऐसे भी होता है, तब मतलब माना नहीं चेंज होगा, लेकिन ये कि कोई उसमें ज्यादती आ जाएगी, कोई उसमें जोश आ जाएगा, जिसकी वजह से वो माना तो वही रहेगा, उसके अंदर एक अंडरस्टूड वाली बात आ जाएगी कि अच्छा कुछ ऐसा है इसमें जो इसे दूसरे से फर्क कर रहा है। जी सिस्टर कोमल, आपका हैंड रेज है। सिस्टर कोमल, अगर तो नहीं पुराना, सिस्टर, जी अच्छा जी, अब आप सब देख लीजिए। मैम एक क्वेश्चन है, जी इसका ये जो तदब्बर का मफूल है, ये एक डिफरेंट पैटर्न पे है, तो ये हमने मतलब याद करने के लिए इसी तरह से लिया मफऊल, इसका मफऊल था। जी देखिए जी ना, जी। जो हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं मुअल्लिम, मुअल्लम, मुतदब्बिर, मुतदब्बर, सिर्फ ये जो तदब्बर है ना, इसका सिर्फ शुरू में मीम लगानी है, हमारे अल्फाज वही रहेंगे। जैसे हम अल्लामा में अल्लामा ही रहा था ना, उसमें मीम लगा के शुरू में जेर जबर का फर्क किया था। अब ये जो मेन बीच में से तदब्बर तो यही रहा है ना, तदब्बुर। अब ये इसके शुरू में मीम लगाई है, और वो जो जेर जबर की तब्दीली हमने फाइल और उसकी करके एंड पे तनवीन लगा दी है। सॉरी सिस्टर सॉरी, मैं वो समन, लास्ट वाला कहना चाह रही थी, जी मस्दर मस्दर। सिस्टर समन का कोई क्वेश्चन है? जी जी, मैं ही बोल रही हूँ मैम, ये मैं ये लास्ट वाला कहना चाह रही थी, मफूल नहीं, ये जो लास्ट पे आते हैं ना मस्दर, वो मैं पूछ रही तदब्बुर, तदब्बुर, थी। जी जी, वो क्योंकि तदब्बुर। अब ये उसके हमारा ऊपर नया पेश आ फेल है, गया। ये हमारा नया बाब है एक्चुअली। तदब्बुर, हमने इसको याद रखना है। तफअल, ये जब आपने तफईल, मुफाअला, इफ़आल, इसी तरह से इफ्तिआल और इस्तिफ़आल, उसमें आपने इजाफा कर लेना है। उसमें आप लिख लीजिए तफअल, हमारा बाब है तफअल, ये आप इस तरह से याद रख लें। और अगर इसकी माजी की चाबी कहेंगे तो हम करेंगे तफअला, ठीक हो गया। अब ये हम कर लेते हैं, फिर क्लास को अच्छा कंप्लीट अच्छा, करें। सही। अच्छा जी, वो सब कुरान पर गौर करते हैं। यतदब्बरून यतदब्बरुल कुरान यतदब्बरूना, फिल कुरान। हाँ, फिल कुरान कर फिल लें, आएगा।
اس کو ڈائریکٹ بھی ملایا جا سکتا ہے. ڈائریکٹ تدبرون القرآن. قرآنی نون زیر نہیں آئے گا نا. یتدبرون القرآن. قرآن. اور اگر فی لگائیں گے نا تو ہم کیا کریں گے؟ اس زبر کو زیر میں چینج کر دیں گے. افلا. آ کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا فا. پھر پھر کر لیں یا بھلا کر لیں، وہ کر لیں. آگے کیا پھر وہ غور نہیں کرتے قرآن پر. غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا سب ہوا غور ہے؟ نہیں افلا کو نکال دیں تو یہ اوپر والے کا پورا ترجمہ آ گیا. یتدبرون القرآن. ٹھیک ہو گیا؟ افلا کو نکال دیں. اچھا جی، اب حل تتدبرون، صرف اس کو چینج کریں. نتدبرو. نتدبرون. نہ تدبر. ہاں ہوگا تو نعم، نہ ہوگا تو لا، اور اگر ماضی ہوگا تو ما. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیے، یہ جو توکل ہے نا، یہ توکلا، اس کا ٹیبل ہم ایسا کریں گے کہ سب سے سنیں گے گروپ میں. ٹھیک ہو گیا جی؟ سب کوشش کریں گے، کسی نے شرمانا نہیں ہے. توکلا یہ اسی طرح توکلا، توکلو، توکلتا، توکلتو، توکلتم، توکلنا اور توکلنا. چلے آپ کر لیں. مضارع سے شروع کر لیں گے، توکلو سے شروع کر لیں. توکلا، توکلو، توکلتا، توکلتو، توکلتم، توکلنا، توکلت. یتوکلو، یتوکلون، تتوکلو، اتوکلو، تتوکلون، نتوکلو، تتوکل، تتوکلو، توکل، توکل، توکلو، لا تتوکل، لا تتوکلو، متوکلن، متوکلن، توکل. توکل. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر. اچھا جی، باقی سب نے کوشش کرنی ہے گروپ میں سنانے کی. ٹھیک ہوگا جی؟ ایک سسٹر نے یہاں پر ہمت کی اور الحمدللہ بہترین ٹیبل سنایا. اچھا جی، اب ہم کیا کرتے ہیں، کلاس کو ابھی کلوز کر لیتے ہیں. اذان شروع ہو گئی ہے اور اب نیکسٹ کلاس ہم کوشش کریں گے کہ پورے 6 بجے کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، پلیز سمجھنے، مجھے ایک غور کرنے، کوشچن عمل کرنے. پوچھنا ہے. اچھا جی، کر لیں. یہ جو پچھلے کچھ ورک بک کے ہیں، اس میں کچھ ورڈز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ وہ آپ مزید فی بھیجیے، والے اب آپ مجھے بھیجیے یا حفصہ کو بھیج دیجیے. چلیے آپ ٹھیک ہے سسٹر افسا انشاءاللہ. کو بھی بھیج سکتی ہیں، آپ سسٹر وصال کو بھی بھیج سکتی ہیں. لیکن ٹھیک ہے. کوشش سب نے کوشش کرنی، کسی ایک کو بھیجا کریں. ٹھیک ہے؟ میں نے پہلے سسٹر حفصہ کو بھیجے ہیں کچھ، تو وہ کہہ رہی تھی آہستہ آہستہ کچھ ہو جائیں گے. بیچ میں سے کچھ ہو گئے ہیں لیکن ابھی کچھ رہتے ہیں. ہاں، جو رہتے ہو انشاءاللہ. بلکہ آپ اس کو ایسا بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی ورک بک کے چینج ہوتے ہیں نا پیجز، کوئی ٹرانسلیشن وغیرہ چینج ہے تو گروپ میں بھی ڈال سکتے ہیں. کسی کو آپ ٹیگ کر دیا کریں، مجھے ٹیگ کر دیں یا حفصہ کو کر دیں، سسٹر وصال کو، افسا کو، کسی کو بھی ٹیگ کر دیا کریں کہ یہ والا میرا چینج ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کو ہم نے اس طرح سے لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ. یہ آپ کے کوئی امتحان، کوئی اس طرح کے ٹیسٹ نہیں کہ آپ نے اس کو خود ہی کرنا ہے، جیسے مرضی کرنا ہے. ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ لیکن یہ مجھے تھوڑا مزید فی والا مشکل لگ رہا ہے، تھوڑا کون سا ڈیفیکلٹ والا؟ لگ رہا ہے. مزید فی والا. یہ مزید فی جو اور ہیں یہ مزید تھوڑے فی میں ڈیفیکلٹ. جو ایک مزیدار بات ہے نا، مجھے کہ جس دن آپ کو مزید فی کی سمجھ آ گئی نا، یہ آپ کو سب سے آسان لگیں گے. یہ آپ کو قرآن پاک میں سب سے زیادہ آسانی سے ملیں گے. یہ سب سے زیادہ ٹیبل بنانے آپ کو آسان لگیں گے. کیونکہ اب دیکھیں، اگر آپ کو صرف پہلا سمجھ لیں کہ آپ کو حاسبہ کی طرح مل گیا، حاجرہ مل گیا یا قاتلہ مل گیا، آپ کو صرف ایک لفظ کی ضرورت ہے. چاہے آپ کو یقاتلو مل گیا، آپ کو ایک صرف سیگا چاہیے، آپ پورا ٹیبل مکمل بنا سکتی ہیں. یہ مزید فی کی یہ آپ سمجھ لیں کہ خوبی ہے کہ یہ اگر سمجھ میں آ جائے، اور انشاءاللہ یہ ہم اتنی اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے کہ انشاءاللہ سمجھ آئے گی. جب ہمارا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شروع ہوا تھا، ہم بھی تھوڑے آسان سے اس کرے طرح گا. سے بخلا گئے تھے کہ یہ اچانک سے یہ کیا آ گیا، یہ تو بالکل چینج ہو گیا. ابھی ہم زنا والے پہ تھوڑے سے کنفیوز تھے، اب آگے یہ اور تھوڑی چینج آ گئی. لیکن یہ کہ الحمدللہ یہ ہم بہت اچھے طریقے سے سیکھ کر ہی آگے جائیں گے انشاءاللہ. QC4 میں جب ہم پہنچیں گے تو یہ جو قرآن پاک میں الفاظ جو مزید فی کے آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو ایک لفظ سے پورا ٹیبل بنانا آئے گا. ہم اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے انشاءاللہ.
ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. بہت ساری دعائیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا.